নমস্কার, আপনাদের সাথে আমি রয়েছি বর্ষা। আপনারা দেখছেন খবর আসানসোল, स्पॉन्सर्ड बाय मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज के साथ जीरो ग्रेविटी जिम आपके फिटनेस जर्नी को देगा एक नई उड़ान। हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है। कंप्लीट हो गया है स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर यहाँ बायर मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अब एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। अगला नंबर है आपका क्रिसेंट आईटीआई रहमतनगर। ভোটের ফল প্রকাশের পর বিভিন্ন হিংসাত্মক ঘটনার খবর উঠে আসছে। এমনই এক হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগ উঠে এসেছে বারাবণীর কপিষ্টা অঞ্চল থেকে। বিজেপি যুব মোর্চা নেতা খোকন মহারাজকে মারধর করার অভিযোগ। বিজেপি নেতা অভিজিৎ রায় তথ্য দিতে গিয়ে জানান যে কাল দুপুরবেলা কিছু মানুষ হঠাৎ করে খোকন মহারাজের বাড়িতে ঢুকে খোকন সহ তার স্ত্রীকে মারধর করে। এই ঘটনার জন্য অভিজিৎ রায় প্রশাসনের ওপর প্রশ্ন তুলে বলেন যে শুধুমাত্র আজ বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী হওয়ার কারণেই আজ এই রকম হিংসাত্মক ঘটনার মুখোমুখি হতে হচ্ছে কর্মীদের। প্রশাসন কি করছে? এবং সাথে তিনি বারবার হওয়া এই রকম ঘটনার জন্য প্রশাসনকে দায়ী করেন। এই ঘটনার পর বারাবণী থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়, যদিও তৃণমূল এইসব অভিযোগকে অস্বীকার করেছে। এই যে তৃণমূলের নেতারা আমাদের ঘরে হামলা করেছে, মদ খেয়েছে, নিয়ে হামলা করেছে, আমার স্বামীকে মেরেছে, আমাদের দরজা ভাঙচুর করেছে, আমাকে মেরেছে, গায়ে হাত দিয়েছে। কখন হয়েছে ঘটনাটা? হয়েছে ওই 2টোর সময়। কতজন এসেছিল ওরা? ওরা অনেকজনই ছিল, 10 জনের মতো। হঠাৎ এসে ঝামেলা করেছে? হ্যাঁ, হঠাৎ বাইরে এসে গালাগালি করছিল, মদ খেয়েছিল। আমরা বাড়িতে ভাত খাচ্ছিলাম আর ওরা বাইরে এসে গালাগালি করছিল। আমরা বাইরে বেরোলাম, তারপরে ওই হামলা করছিল। কোথাকার ছেলে ছিল ওরা? এই গ্রামেরই ছেলে। একজনাকার নাম নুনু আর একজনাকার নাম রাখাল, জিতুয়া আর কে ছিল, কালো সোনা, শিবেন। এরা কেন এরকম কেন করলো হঠাৎ? আমরা বিজেপি করি, ওরা জিতেছে ওই জন্য। আমরা হেরে গেছি, আমরা বিজেপি করি, ওরা তৃণমূল করে, ওরা জিতেছে। কি নাম আপনার? কি নাম আপনার? আমার নাম অমৃতা মহারাজ, আমার স্বামীর নাম খোকন মহারাজ। কি অবস্থা দেখুন, কালকে ভোটের রেজাল্ট ডিক্লেয়ার হয়েছে। আমাদের যুব মোর্চার ভাই খোকন মহারাজ, তার দোষ কি? সে বিজেপি করে, সে একনিষ্ঠ কর্মী বিজেপির। এর আগেও তার উপর অ্যাটাক করা হয়েছিল। আজকে দেখুন এমনভাবে অকথ্যভাবে মারা হয়েছে, বাড়ির মহিলাদেরকে পর্যন্ত মারা হচ্ছে। আমাদের এদের দোষ কি যে বিজেপি করে? শুধু এটাই দোষ? গণতন্ত্রে কি বিজেপি করা পাপ? আজকে দেখুন সে কি করেছে, তার দোষ কি? কোনো পার্টিকে কেউ ভোট দিতে পারে, কেউ পার্টি করতে পারে, কই আমরা তো কারোর উপর এমনি করি না কখনো। তাহলে আজকে এই ধরনের যে ব্যাপারগুলো হচ্ছে, প্রশাসন এখানে কি করছে? আগের বারও হয়েছিল, এই ছেলেটার উপর হয়েছিল। কারণ এইটাকে পার্টিকুলার এইখানকার যারা আছে তাদেরকে ইচ্ছে করে প্রশ্রয় দিচ্ছে। কে প্রশ্রয় দিচ্ছে? প্রশাসন প্রশ্রয় দিচ্ছে। একটা ছেলের উপর বারবার কেন অত্যাচার হবে? সে কি দোষ কি করেছে? সবাই বলুক তো এখানে তার দোষ কি? সে বিজেপি করে, সে বিজেপি করতে পারে না? কে কোনো পার্টি করতে পারে? প্রশাসনকে যদি সংসার চালাতে দেওয়া হয় তাহলে এইরকম হয়। এই হচ্ছে ওর কোনো দোষ নাই, দোষও শুধু বিজেপি করে। অভিজিৎ এখন কি হবে? ওকে কিছুই না, আমরা এসছি ওর সঙ্গে দেখা করতে। দেখুন না আপনারা, দেখুন এগুলো কি, এটা কি হয়েছে দেখুন, কিভাবে মেরেছে দেখুন, কিভাবে রক্ত বেরোচ্ছে দেখুন, পায়ে দেখুন কিভাবে মেরেছে, কিভাবে মারছে, মহিলাদেরকে মারছে। দেখুন মহিলাদেরকে মারছে, মেয়েদের আব্রুতার উপর হাত উঠছে। এটা পশ্চিমবঙ্গের কালচার, এটা বাংলার কালচার। ঘর থেকে টেনে নিয়ে এসে, ঘর থেকে টেনে এনে পরে মারছে, বার করে মেরেছে আমাদেরকে, আমারকেও মেরেছে। আপনি বলুন, আপনারা বলুন, এটা তারা কি করতে পারে না? তারা কি নিজের মতন নিজে পার্টি করতে পারে না? আমরা বিজেপি করে বলে আমাদের উপরে এইভাবে অত্যাচার। এর আগেও বিকশিত ভারত গাড়ির উপর অত্যাচার হয়েছিল, অ্যাটাক হয়েছিল, তার ড্রাইভারকে অত্যাচার করা হয়েছিল, কিভাবে মারা হয়েছিল, লাইট ভেঙে দেওয়া হয়েছিল এই জায়গায়। কাল রাতে এত বোম ফাটিয়েছে, ঘরে শুদ্ধ ছুড়ে দিয়েছে, দরজা জানলা সব ভেঙে দিয়েছে, দরজাটা ভেঙে দিয়েছে। বিজেপি নেতা শঙ্কর চৌধুরী আজ একটি প্রেস কনফারেন্স করেন। এই প্রেস কনফারেন্সে তিনি বলেন যে কেন্দ্রে তৃতীয়বার বিজেপি ক্ষমতায় আসতে চলেছে এবং সেই জন্য তিনি সকল ভারতবাসীকে অভিনন্দন জানান। এছাড়াও তিনি বলেন 2014 এবং 2019 সালে লোকসভা নির্বাচনে আসানসোলে ভারতীয় জনতা পার্টি একা নিজের দক্ষতায় জয়ী হয়েছিল এবং কেন্দ্রেও নিজের জয় সুনিশ্চিত করেছিল।
তবে এইবার নিশ্চিত রূপে কিছু ভুলের জন্য বিজেপির এনডিএর সাথে এই সিট পেয়েছে। সাথে তিনি আরও জানান, বিজেপির যেসব কর্মচারীরা দিনরাত পরিশ্রম করেছে দলের জন্য, তাদের পরিবর্তে বিপক্ষীয় দল থেকে আসা কর্মচারীদের উচ্চপদস্থ স্থান দেওয়া এবং সাথে নির্বাচনে প্রার্থী বানানো হচ্ছে একটি অন্যতম ভুল, যার কারণে আজ বিজেপির পারফরমেন্স খারাপের দিকে অগ্রসর। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। इसके उपलक्ष्य में मेरे प्रेस बंधु आप सभी को एवं संपूर्ण भारतवासियों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं। आज इसी उद्देश्य को लेकर के आप लोगों हम लोगों ने पूरी खुशियां है कि केंद्र में तीसरी बार बन रही है और उस खुशी में आप लोग भी सहभागी बने, आप लोग का भी मुंह मीठा कराए। इसी उद्देश्य से आप लोग को कार्यालय में सादर आमंत्रित किया गया है कि आप आए और हम लोग के खुशियों में आप अपना भी योगदान करें। 2019 में पूरे देश में और बंगाल में भाजपा का जो परफॉर्मेंस था उसके मुकाबले इस बार कहीं ना कहीं पतन हुआ है। भाजपा को अकेले दम पे मेजॉरिटी नहीं मिली है, क्या कहेंगे? देखिए 2014-19 में अकेले दम पे आसनसोल भी भारतीय जनता पार्टी जीती थी और केंद्र में भी हम लोग प्रथम बार एकक संख्या गरिष्ठ थे। द्वितीय बार भी हम लोग 303 सीट लाए थे। इस बार कहीं ना कहीं हम लोगों से चूक हुई है। यदि चूक नहीं हुई होती तो आज भारतीय जनता पार्टी को एनडीए के साथ मिलके जो सीट लाए हैं वो सीट नहीं आता, उससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इस बार 300 पार होना चाहिए था, लेकिन कहीं चूक हुई है। इस कारण से हम लोग को सीट इस बार कम मिली है। चूक हो सकता है तो क्या लगता है? चूक यही हो सकता है, मुझे जो लगता है व्यक्तिगत कि सिर्फ पश्चिम बंगाल ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में जो भाजपा के कार्यकर्ता भाजपा के लिए जीवन दिए थे, जिन्होंने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी का काम किया था, दिन रात पार्टी की सेवा की थी, वैसे कार्यकर्ताओं को साइड करके आरजेडी, सपा, बसपा, डीएमके, एमके जितने भी पार्टियां भारतीय विपक्षी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उनसे जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे, जैसे पश्चिम बंगाल में टीएमसी, जो लोग आए थे उनको ऊंचा स्थान, ऊंचा पद देना और निर्वाचन में प्रार्थी बना देना, ये हमारी लगता है कहीं भूल था। इस भूल के कारण आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो परफॉर्मेंस हुआ है ये थोड़ा पुअर हो गया है। क्या भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसने 2021 के विधानसभा चुनाव से सीख नहीं ली? 2021 में तो विधानसभा हुआ था, चुनाव से क्या सीख नहीं ली? क्योंकि तब भी वही हुआ था। देखिए मैंने तो पहले भी प्रेस करके मैंने ये बात बोला था कि जब तक पश्चिम बंगाल की जब बात आप कर रहे हैं तो पश्चिम बंगाल में जब तक पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं दिया जाएगा, पुराने कार्यकर्ताओं को उचित स्थान नहीं दिया जाएगा, पुराने कार्यकर्ताओं से को टिकट नहीं दिया जाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा बंगाल में। ये तो 2 बार 3 बार ये तो एक्सपेरिमेंट में पता चल रहा है। अब भी यदि सीख नहीं लगी तो 2026 होने वाले इलेक्शन में मुझे लगता है कि यदि ऐसा नहीं किया गया, पुराने लोगों का सम्मान नहीं दिया गया, पुराने कार्यकर्ताओं को यदि आदर नहीं किया गया, उनको में से किसी को टिकट नहीं दिया गया, तो रिजल्ट आशा के अनुरूप होगा। तो आपको क्या लगता है कि एस.एस. अहलुवालिया जी ने पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया, इसलिए अहलुवालिया जी के साथ मीटिंग हुई थी, प्राय 150-200 कार्यकर्ता को लेकर के मैंने मीटिंग किया था, अहलुवालिया जी को साथ में रखे थे कि अहलुवालिया जी आप आए, उनसे बात करें। कोई जो टीम आप देख रहे हैं यही टीम 2014 में बीजेपी को बाबुल सुप्रियो को जिताया था, यही टीम 2019 में बाबुल सुप्रियो को जिताया था,
और चूंकि 2021 के लोकसभा में जो बाई इलेक्शन था उसमें जो लोग तृणमूल से आए हुए थे उनके दायित्व था, उनके दायित्व में रिस्पॉन्सिबिलिटी के तत्वाधान में निर्वाचन किया गया था। रिजल्ट हुआ कि कॉरपोरेशन भी हार गए, पंचायत भी हार गए और लोकसभा भी हार गए। तो ये बहुत दुख की बात है कि जो लोग बाहर से आते हैं, दूसरे दलों से आते हैं, उनको क्षण क्षण ऊंचा स्थान और प्रार्थी बनाना ये हमारी बड़ी भूल हुई है। क्या आप लोग फीडबैक नहीं दे रहे हैं अपने आला? देखिए, इसके पहले अटल जी का एक वाणी था कि पुराने कार्यकर्ताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, पुराने कार्यकर्ताओं को सम्मान करना चाहिए, और जो लोग दूसरे दल से आते हैं वो भी सम्मानित है, उनको भी सम्मान मिलनी चाहिए, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी जो होता है वो बहुत खतरनाक होता है और जल्दीबाजी के कारण ही हम आज इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछली बार सरकार बनते बनते नहीं बन पाई। और आसनसोल भी आप लोग इस बार फिर से नहीं जीत पाए, जबकि 2 बार आप लोग जीते थे। तो आसनसोल की अगर से बात करें तो क्या गलती रह गई? आसनसोल में देखिए, आसनसोल की जमीन भारतीय जनता पार्टी की जमीन है। यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में यहाँ का जनता प्रभावित है और यहाँ की जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के माइंडेड की जनता है। इसलिए ये सीट अति महत्वपूर्ण है। जब 2 सीट जीते थे पश्चिम बंगाल में, तब 1 सीट दार्जिलिंग था और 1 सीट यहाँ था, आसनसोल था। 14 में जब जीते थे 2 सीटें, तब 1 सीट आसनसोल, 1 सीट वहां। इसलिए हमने लगातार जीता। इस बार भी परफॉर्मेंस खराब नहीं हुआ हमारा। जो 21 में हारे थे 3 लाख वोटों से अंतर से, इस बार हम लोगों ने 59,000 के वोटों से हारा है। किंतु हार तो हार ही होता है, चाहे ITI में इंटरेस्ट रखने वाले हो जाए तैयार, क्योंकि आसनसोल में स्थित NCVT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एफिलिएटेड क्रेसेंट ITI में शुरू हो चुका है एडमिशन। ITI कोर्स फॉर इलेक्ट्रीशियन एंड फिटर विद 2 years ऑफ कोर्स ड्यूरेशन, मॉडर्न इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, वाईफाई कैंपस, इंडस्ट्रियल विजिट, कंप्यूटर क्लासेस, स्कॉलरशिप, स्पेशल क्लासेस और इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी के साथ पाए 100% जॉब असिस्टेंस। सेल, इसको ECL और रेलवे जैसे फील्ड में हमारे कॉलेज के 100 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप। अगला नंबर है आपका क्रेसेंट ITI, रहमतनगर, बर्नपुर, आसनसोल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट करें। अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए अगर आप खोज रहे हैं शॉप्स, तो इससे बड़ा सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पायल मल्टी प्लाजा की, जहां ऑफिस स्पेस और शॉप्स अवेलेबल है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए स्टार्टिंग प्राइस के साथ। आसनसोल रेलवे स्टेशन के करीब स्थित पायल मल्टी प्लाजा में कई फैसिलिटीज अवेलेबल है, जैसे पार्किंग स्पेस, सिक्योर एनवायरनमेंट विद सेफ्टी फीचर्स, पावर बैकअप, वाटर स्टोरेज और भी बहुत कुछ। आने वाले समय में इस एरिया में होने वाले डेवलपमेंट का यह होगा एक अहम हिस्सा। तो देर किस बात की, आज ही बुकिंग करें और अपने बिजनेस को दे एक नई उड़ान। हमारा एड्रेस है नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन, पायल मल्टी प्लाजा, आसनसोल। अपने यूनिक कलेक्शन के लिए पूरे शिल्पांचल में जाना जाने वाला हमजा कलेक्शन अपने ग्राहकों के लिए लेकर आ गया है कंप्लीट फैमिली स्टोर, जहां बच्चों से लेकर बड़ों तक के सभी लोगों के लिए है स्टाइलिश, कंफर्टेबल, अट्रैक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पर। किड्स वेयर, जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर, सभी कुछ। तो शॉपिंग करने जरूर आए हमजा कलेक्शन। नोट करें हमारा पता, ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस, GT रोड, आसनसोल। हेल्थ है हमारी लाइफ की सबसे बड़ी वेल्थ। इसे फिट, स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना है हमारी पहली प्रायोरिटी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी फैसिलिटीज के साथ जीरो ग्रेविटी जिम आपके फिटनेस जर्नी को देगा एक नई उड़ान। जिम एक्सेस के अलावा डाइट कंसल्टेंट, पर्सनल ट्रेनिंग, योगा, जुम्बा, जिम किट जैसी बेनिफिशियल फैसिलिटीज। जीरो ग्रेविटी जिम, फिट टू बी हिट। हमारा एड्रेस है 4th फ्लोर, पायल मल्टी प्लाजा, नियर आसनसोल रेलवे स्टेशन। गाइस,
सुविधाओं के साथ आने वाले स्मार्टफोन्स की करनी हो खरीदारी तो मोबाइल हॉस्पिटल है शिल्पांचल वासियों की पसंदीदा स्टोर। ज्यादा एक्सचेंज वैल्यू, 0 डाउन पेमेंट और 0% इंटरेस्ट के साथ एक्साइटिंग ऑफर्स, वो भी ऑनलाइन से कम प्राइस में। स्मार्टफोन ही नहीं, मोबाइल हॉस्पिटल में मिलेंगे स्मार्ट टीवीज, टैब्स और अदर एक्सेसरी। हमारा एड्रेस है ड्रीम ओएसिस अपार्टमेंट, लोअर चेलीडंगा, आसनसोल। मेंस वियर की एक्सक्लूसिव शोरूम सुप्रीम गारमेंट अब आसनसोल में। मेंस के पसंद का खास ख्याल रखते हुए जीन्स, शर्ट, टी शर्ट, ट्राउजर, जैकेट, ब्लेजर और शूज के अलावा और भी बहुत कुछ सिर्फ सुप्रीम गारमेंट में, जो कि है पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरी मैन। हमारे यहाँ 2500 या 2500 से ऊपर की खरीदारी करने पर आप ले सकते हैं लकी ड्रॉ में हिस्सा, जिसके विजेता को मिलेगा एक चमचमाती हुई स्कूटी। तो आज ही आए हमारे यहाँ। नोट करें हमारा एड्रेस, टीपी मार्केट नियर टेक्नो कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, आसनसोल। बचपन का निदान भी किया जाता है। ध्यान रहे हमारे यहाँ अत्याधुनिक तकनीक द्वारा इक्सी करने की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ ओटी में HU व HEPA फिल्टर सिस्टम है, जिससे ओटी का वातावरण स्वच्छ और पोल्यूशन मुक्त रहता है। यूट्रस में माँ के गर्भाशय की तरह स्थिति रहती है। इसके अलावा अत्याधुनिक इक्सी मशीन, वर्ल्ड टॉप नॉच लेमिनर फ्लो के साथ बेंच टॉप इंक्यूबेटर। अब मेट्रो सिटी की सुविधा आपको करीब मिलेंगे। इसके अलावा हमारे यहाँ डॉक्टर स्वयं सोनोग्राफी करते हैं और रिपोर्ट तुरंत दिया जाता है। तो महिलाओं की कोई भी समस्या हो, उसके लिए संपर्क करें स्पर्श फर्टिलिटी एंड वुमेन्स केयर। हमारा पता है आविष्कार बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, GT रोड। জ্যৈষ্ঠ মাসে অমাবস্যা তিথিতে বিবাহিত হিন্দু মহিলারা স্বামীর দীর্ঘায়ু এবং মঙ্গল কামনার জন্য বটসাবিত্রী ব্রত পালন করে থাকে। আজ আসানসোলে বিভিন্ন স্থানে বিবাহিত মহিলাদের দ্বারা অত্যন্ত আনন্দের সাথে সেই বটসাবিত্রী ব্রত পালন করতে দেখা যায়। আসুন দেখে নিন তার এক ঝলক। लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है, उनकी आयु लंबी रहे और हमें जब भी शादी हो इनसे सुहागन ही रहूं मैं। सीता गुप्ता। पति के लिए किया जाता है, ये बट सावित्री पूजा है। ये पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसमें सारे फल इसी समय, फल लीची सीजन का फल ही इसी समय मिलता है, इसीलिए यही सीजन का फल है, तो ये पूजा में सम्मिलित होता है। कितने सालों से कर रहे हैं? ये 18 साल से कर रहे हैं। क्या नाम? निशा बर्नवाल। पति का लंबी उम्र के लिए। ऐसा क्या कारण रहा जो कि इसका ये पूजा किया जाता है? सती सावित्री नाम का एक औरत थी, तो उसका पति का यमराज जो है प्राण छीन के ले जाने लगे थे, वो उनका पीछा वो कर रही थी। तो यमराज चल रहे थे आगे आगे, वो उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तो चलते चलते वो थक गए, तो पूछे बेटी तुम मेरे पीछे काहे आ रही हो? तो यमराज जी पूछे सावित्री माता से, तो वो बोले कि आप मेरा पति के लिए जा रहे हैं, तो हम उनका बिना कैसे रहेंगे? तो बोले कि अच्छा ठीक है, तुम 3 वरदान मांगो। तो इसीलिए माँ सावित्री जो 3 वरदान मांगी थी उनसे, इसीलिए दिया था उनको 3 वरदान। इसीलिए चना का रूप में जो है ना सत्यवान जी का प्राण लौटाया था यमराज जी, इसीलिए चना भी बलवृक्ष देव को चढ़ाया जाता है। क्या बोले? भावना कुमारी। कौन सा पूजा कर रहे हैं? वट सावित्री। किस लिए करते हैं? पति के लिए किया जाता है, उनके लंबी आयु के लिए किया जाता है। आज आप लोग यहाँ पर क्या क्या करेंगे? वट सावित्री का पूजा किया जाएगा, फेरा किया जाएगा। आपका नाम? माधुरी साहब। আজকের খবর এই পর্যন্তই। এই ধরনের আরো খবর জানতে চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেল খবর আসানসোলে।
नमस्कार। नगर निगम के तत्वाधान में मिशन निर्मल बांग्ला को सफल बनाएं। हमारी प्रतिज्ञा, हमारा गर्व। एक बात सभी याद रखें, कचरा जहाँ तहाँ ना फेंके। कौन सा कचरा कहाँ डालना है अच्छी तरह से समझना है। स्वयं जागरूक हो, औरों को भी जागरूक करें। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल प्रक्रिया को अपनाएंगे, सुंदर स्वस्थ आसनसोल बनाएंगे। आसनसोल नगर निगम के ग्रीन और ब्लू बीन का सही इस्तेमाल करें, प्लास्टिक का व्यवहार ना करें और लोगों को भी जागरूक करें। सुंदर परिवेश गढ़े, स्वस्थ रहे। आसनसोल नगर निगम सदैव आपकी सेवा में उपस्थित है। क्लीन आसनसोल, ग्रीन आसनसोल।